Sunny Patiana. He is also a Cambodian who did his psychiatric training at SIMS, and he is currently serving as the head of psychiatry department, Rashid Latif Medical College. His areas of interest include critical psychiatry and its difference from conceptual psychiatry plus forensic psychiatry. We are happy to have you on board, sir. Always remember, always here. जब आपका दिल करे, you can connect and we can. Anyone in your family beforehand who motivated you? Like who was a psychologist before you? Or who came from this? Somehow we can say that people did motivate me, not because they were psychologists or psychiatrists, but since I was very young, I did think that, like in most families, there's a lot of craziness in the family. So as a child, I would say and see, the parents are like extremely irrational, over emotional. And as a child, I would often think that why don't they kind of agree to disagree, or why don't one of them marries somebody else, or why one does not. So I was so कोई teacher तो नहीं था, psychologist भी नहीं थे in fact, लेकिन मसले काफी ज्यादा थे, और home politics और जिस तरह हर घर में होता है basically. So I had a nice kind of environment जहाँ पे, and I somehow used to enjoy that thing because I was like, यार ये बड़ा अच्छा मजे का एक ड्रामा चल रहा है ना, लड़ाई चल रही है. So I would somehow enjoy it in a very very vicarious kind of way. Or okay. I think now that probably I made myself distant in a way that I never processed those emotions, and for a long period of time I would always just make myself distant to that thing happening around me. Or somehow that is going still now. It's good or bad, but the process is still the same. Okay. Sir, can you give us a brief overview of your journey from a student of MBBS to where you are today? The milestones that you achieved, the educational journey. अब ऐसा हुआ कि I came to King Edward Medical University as a medical student coming from government college. There was a name in the list. I joined the medical college, and to my surprise, I thought that I have come to a place where it's going to be a very interesting university level kind of thinking, और पढ़ाई भी होगी, और personal development भी होगी, or a lot of things will happen which I thought were at par. जिस तरह पहले I was at Eastern College, so there was a lot of extra co-curricular activities, debates, games, all those things. And even at government college, a lot of activities was happening. Not that those previous places were also disappointment in their own way. When I came to King Edward Medical University, पहले 1-2 सालों में ही I realized that I am just at a place which has somehow become a place for mental abuse in a way. And that mental abuse, I think, I thought it is probably my own problem, because people were doing very well. They were doing excellent. They were passing their examinations. They were going through different classes, sara kuch hai. But I had a very kind of subjective nature. So I felt things very deeply, and I felt we were not taken care of. There was lot of split between the basic sciences. एक छोटी सी एग्जांपल मिसाल के तौर पे प्रोफेसर शनाज होती थी फिजियोलॉजी की डिपार्टमेंट. उन्होंने मिसाल के तौर पे कहना कि अटेंडेंस के लिए एक लड़का आएगा, एक लड़की आएगी, एक लड़का खड़ा होगा, एक लड़की. So it seemed like she was very kind of liberally she wanted us to interact. दूसरी तरफ एनाटॉमी डिपार्टमेंट में जाना तो वहाँ एक प्रोफेसर अतिया मुबारक होती थी हमारी. उनका हुक्म होता था कि अगर कोई लड़का लड़की इकट्ठे नजर आए तो बस फिर वो जो है ना वही निपटे उनसे. अभी इट वाज अ स्ट्रेंज काइंड ऑफ एग्जैक्ट ऑपोजिट गोइंग ऑन थिंग. सो आई वाज नॉट वेरी स्टिल आई एम नॉट वेरी politically right. I have this problem that I cannot follow the rules if they don't make sense to me, right? And I have suffered a lot in my life, a lot of educational setbacks, a lot of professional setbacks.
even till now, even being a kind of even completing the process for professorship, still if I don't follow those rules, I stand nowhere. तो अब आमतौर पे ये प्रॉब्लम्स फेस करना इतना बड़ा मसला होना नहीं चाहिए. If you can just if you can just flatter the right people, you can get away with things and you can do things. इतनी बड़ी चीज नहीं है. लेकिन पॉइंट ये कि इफ यू आर वेरी आइडियलिस्टिक, इफ अगर आपने किताब खासतौर पर खुदा ना खास्ता आपने से अगर कोई फिलॉसफी की किताब पढ़ ली आपने, then the damage is kind of irreversible. Because अगर आपने ये पढ़ लिया है कि thinking is good, फिर आपका लई हाफिज है, बिकॉज यहाँ पे थिंकिंग इज नॉट अलाउड. ठीक है, एजुकेशन सिस्टम में थिंकिंग इज नेवर काइंड ऑफ एप्रिशिएटेड. रट्टा इज एप्रिशिएटेड, क्वेश्चनिंग इज नॉट एप्रिशिएटेड. एवरी 2 नंबर जो आप चीज कर सकते हो दैट इज एप्रिशिएटेड समहाउ. हो सकता है कुछ लोग एग्री करें, कुछ लोग डिसएग्री करें. आई एम ओनली कंसर्न अबाउट my views at the moment. I don't care जिसका जो एक्सपीरियंस है. हर बंदे का अपना राइट है अपनी स्टोरी सुनाने का. तो मुझे आज क्योंकि ये माइक मिल गया है और कुछ लोग हैं, तो I'll just tell you how things happened. अच्छा जी, फर्स्ट ईयर आया, सेकंड ईयर, लॉट ऑफ सप्लीज आ रही हैं, पास हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं, सिस्टम की समझ नहीं आ रही. डेमोन्स्ट्रेटर्स हैं, दे आर हैविंग लॉट ऑफ फन ऑन द पार्ट ऑफ स्टूडेंट्स. पढ़ाई मुश्किल भी है, पढ़ाई का सेंस भी नहीं समझ आ रहा कि यार ये बुक्स इतनी ज़्यादा हैं, क्लिनिकल बेसिक में बहुत ज़्यादा गैप है. थर्ड ईयर आते हैं, सेकेंड ईयर पास होता है, थर्ड ईयर में आते हैं, थोड़ा सा और चीज़ें बेहतर हो जाती हैं, फोर्थ फाइनल ईयर जैसे आप लोग सब जानते ही हैं. There was no career counseling. There might be some support, but I somehow मेरी अपनी personal fault हो सकती है. I was not very socially integrated. मैंने somehow जब भी मशवरा मांगना, ऐसे लोगों से मांगना जो somehow मशवरा जैसे होता है ना, हम अक्सर सीनियर से मांगते हैं जो आपको कूल लगते हैं. There was कोई बैंड है किंग एडवर्ड में, तो I would ask them. उन्होंने अपने हिसाब से मशवरे देने जो I liked in that way. So somehow I connected with those people who were again very independent minds. वो इत्तेफाक से जो मेरा पूरा सर्कल है, most of them are psychiatrists now. For somehow my best friend, he is a psychiatrist at USA. My senior, he's a psychiatrist at UK. तो basically वो सबका दिमाग तो वैसे ही, they were like against the norms and against the traditions and against all those things. मैं अब क्या होता है कि जी MBBS खत्म होता है, किंग एडवर्ड से MBBS खत्म होता है, और अब चूज करना है कि कौन सा प्रोफेशन है. It's very interesting how I kind of chose this subject. मैंने जैसे MBBS खत्म हुआ, I thought कि I'll go and do some kind of internship 2 हफ्ते की हाउस जॉब से पहले. और what I did was मैंने I think 2 हफ्ते PIC में emergency में गुजारे. I was very fascinated कि pacemakers, ECGs, इस सब कुछ काम शाम हो रहा है. So 2 हफ्ते वहाँ लगाए. 2 हफ्ते शौकत खाना में I went to a pathology department. अब टोटली अजीब से, इसमें कोई ताल्लुक नहीं है, पैथोलॉजी जा रहे हैं, लाइक इधर से आप PIC जा रहे हैं. बहरहाल वो 2 हफ्ते करके अब आई सैट डाउन कि स्टेप्स करने हैं. अब सारे स्टेप्स कर रहे हैं. मैंने कहा मैं भी स्टेप्स करता हूँ, बैठ के पढ़ रहे हैं. बीच में आई गॉट वेरी बोर्ड. मैंने कहा कोई आई शुड डू समथिंग प्रैक्टिकली आल्सो. एंड वन ऑफ माय फ्रेंड्स फ्रॉम सम अदर कॉलेज हॉस्पिटल, they said कि why don't you join for house job at services hospital, Dr. Faisal Masood's unit. So I thought कि I'm getting bored, so why don't I go and see some patients, और थोड़ा सा theory के साथ practical भी आएगा. अब मैं जाता हूँ सर्विसेज हॉस्पिटल में. there was a medical unit 4 at that time. I start my house job. फैसल मसूद साहब का एक ऑरा, उनका स्टाइल, I had some excellent medical officers going on. There was such a high level of medical expertise going on. हर patient के ऊपर there were like discussions and
अभी आजकल के मैं हॉस्पिटल के डॉक्टर फवाद रंधावा जो हैं, he was my medical officer at that time. डॉक्टर अमरीन मेडिसिन में थी, शी वाज माय मेडिकल ऑफिसर. सुबह सुबह हमने पढ़ना, डिस्कशन, सब कुछ हो रहा है. अब ये सर्विसेज में आई स्पेंड लेट्स से 6 months डूइंग माय हाउस जॉब. अब हाउस जॉब हो जाती है, पढ़ाई थोड़ी सी बैक बर्नर पे चली जाती है. नाउ आई थिंक लेट्स डू अनदर हाउस जॉब, खत्म कर लें, 1 साल पूरा कर लें. तो उन दिनों ना 6 months मेडिसिन होती थी, 6 months सर्जरी. मेडिसिन के एंड पे आई जस्ट काइंड ऑफ there was this one or two patients जो मैंने psychiatry में दिखाए, और I saw these 2 psychiatrists coming and seeing the patient, and now for the first time I'm seeing a patient doctor interaction. There are 2 people who are coming and talking to the patient. They are like having conversation, talking about his life, what is happening, why he thinks this should happen, how the illness is impacting his. Now that was my first witnessing, because behavioral sciences तब तक नहीं आई थी, के में अभी तक नहीं आई, वैसे प्रैक्टिकली वैसे आई हुई है. सो अब मैं देख रहा हूँ, मैंने कहा व्हाट इज दिस हैपनिंग, दैट यू आर हैविंग अ कन्वर्सेशन, अ वेरी कैंडिड इंफॉर्मेशन, कैंडिड कन्वर्सेशन विद द पेशेंट, एंड दिस साउंड्स रियली गुड. तो पता चला जी साइकियाट्री से आए हुए हैं. मैं कहा यार दिस लुक्स वेरी गुड, यू नो, आई वुड लाइक टू डू दैट. कि there's some kind of emotional connection, or patient is participating, doctors are caring, and सारा कुछ. तो मैंने उनसे पूछा जी आप कहाँ से आए? उन्होंने कहा हम साइकियाट्री से आए हैं. मैंने कहा आपको कोई वहाँ पर सीट है हाउस ऑफिसर की? उन्होंने कहा बिल्कुल एक सीट है, तो इफ यू आर इंटरेस्टेड व्हाई डोंट यू अप्लाई. बहुत बाद में अब आई फाउंड कि ये दोनों मियाँ बीवी थे, दोनों साइकियाट्री में थे, वंडरफुल कपल. the woman is currently the head of department at services, Professor Sumaira Gambar Bukhari, and the guy was Dr. Gambar Bukhari. अब मैं हाउस जॉब के लिए जाता हूँ, वहाँ पे पूरा दरबार लगा हुआ है, आगे टेबल, वहाँ पे बोर्ड पे लिखे होते हैं कौन कौन सी स्लॉट्स हैं. नाउ सिंस आई हैड टू चूज साइकियाट्री, बट एकदम से व्हेन आई सी के आई हैड टू चूज सर्जरी इन माय माइंड, लेकिन वहाँ पे ना साइकियाट्री लिखा हुआ आ रहा है कि एक सीट है, एक सीट है. अब मुझे एकदम से मेरे वो जो बल्ब जला दिमाग में, मैं कहा यार लेट मी ट्राई दिस, इट सीम्स काइंड ऑफ इट माइट बी इंटरेस्टिंग फॉर मी ना, लेट्स ट्राई. So I chose psychiatry at that time, at that moment, without thinking, no plans, no को खास नहीं सोचा. अब वो मेरे प्रोफेसर साहब थे वहाँ पे एनेस्थीसिया के, उन्होंने कहा है, his name was Professor Bashir from anesthesia. He said, Usman, he was a family friend also. He said, hey Usman, यार ठीक है, are you sure? What are you doing? मैं कहा I just want to try this out. कहता है चलो okay, all right. अब मैं जाता हूँ साइकियाट्री में मेरा जो बेस्ट फ्रेंड था शहजाद, क्लास फेलो था मेरा एमबीबीएस में. अब ही यूज्ड टू से यार अमेरिका में ना देयर आर प्रोफेसर्स हु आर वेरी कूल, जहाँ पे आप जाके उनसे गपशप भी कर सकते हैं, यू कैन हैंग अराउंड विद देम, एंड दे आर वेरी काइंड ऑफ कैजुअल, यू नो, कोई ऐसा ये ऊपर नीचे ऊंच नीच नहीं है कि ये प्रोफेसर्स हैं और ये बच्चे हैं, नहीं. मैंने कहा पाकिस्तान में तो ऐसा नहीं है, पाकिस्तान में तो ये प्रोफेसर साहब तो मतलब उनको आप कमरे में नहीं घुस सकते, इट्स वेरी डिफिकल्ट, बड़ा रोप शोप होता है उनका, पता नहीं. सो जब मैं साइकियाट्री डिपार्टमेंट गया, वहां पे आई फाउंड दिस पर्सन हु वाज लाइक वेरी वेरी काइंड ऑफ नाइस एंड अमेजिंग, और हिज नेम इज प्रोफेसर नासिर सईद खान. एंड आई थॉट कि यार वो बंदे तो यहाँ है पाकिस्तान में, प्रॉब्ली मैंने जो सुना था इट वाज एग्जैक्टली लाइक हिम. सो ओके लेट्स गिव इट अ ट्राई. अब मैं जनाब, आई वाज द ओनली हाउस ऑफिसर, आई हैड लाइक 10 मेडिकल ऑफिसर अबव मी, assistant professor, associate, सारा पूरा department है, so only house officer. So I was a very large house officer, so I did not used to do much work, I did not used to listen to anyone. मैं अपना steps पढ़ रहा हूँ, psychiatry का ऐसे, मैंने कहा ठंड है. अब मैंने लेकिन क्या करना कि I would very obsessively, I have a bit of obsession का मेरा दिमाग कहीं फंस जाए तो वो फंस जाता है somehow. पूछना मैंने है नहीं, मशवरा किसी से करना नहीं है, करना वही है जो मैंने सोचा है. अब आई वुड सी ईच पेशेंट इन वेरी डिटेल. अब अगर पेशेंट तेरा भी एडमिट होने हैं ना, तो आई वुड सी ईच पेशेंट फॉर 1 or 2 hours. मैंने आई वुड थिंक यार फ्रेश पेशेंट है ना, मैंने खुद देखना है. और मैंने किताबें रख ली सारी. उस वक्त मोबाइल नए नए आए थे, भी इतने कॉमन नहीं होते थे. सो आई हैड दिस साइकियाट्री बुक, एक ड्रग्स की बुक, एक
medicine ki book, so I would have this bag with all the books ke, I have to figure it out things and I have to make my own diagnosis सारा कुछ. With all the mistakes I would keep on doing in the services hospital, I would see patients and खैर 3-4 महीने तो मैंने ऐसी ठंड में गुजारे. मैंने बहुत ज्यादा लिफ्ट नहीं कराई because I thought कि जैसे स्टॉप गैप सब कुछ. तीसरे चौथे महीने में जाके मुझे कुछ समझ आना शुरू हुई कि यार this is too deep. It's not only a book, it's like a full science. There is a lot of philosophy. Medicine, maybe you have to know the medicine first, then you can go and argue about them. अगर आपने कॉलेज लिखनी है, you want to prove a point, तो you have to know the basics. हर फील्ड की खास तौर पे साइकोसोमैटिक कहना है, कन्वर्जन किसी को कहना है, तो कन्वर्जन के लिए you have to kind of rule out a lot of other things which could be a possibility. So karte karte by the end of 6 months I was sure कि ना उस जमाने में there was this professor Harun Rashid Chaudhary. He was one of the topmost psychiatrists in the country at that time. And I realized that if you want to do psychiatry, the kind of exposure you have in Pakistan, there's nowhere else you can have the same. मिसाल के तौर पे I was told and I learned at that time that he is seeing, let's say, 3,000 patients of schizophrenia in, let's say, 1 month. And a top UK consultant will see less than 60 patients in 1 year. So these kind of numbers kind of played with my mind. And I was like, yeah, I want to have a lot of skill, a lot of exposure, just to, so I thought, okay, maybe for psychiatry, Pakistan is to, if I want to excel, because this is where a cultural component is coming. But मैंने कहा चलो let's try it out. अब क्या हुआ कि medicine का time आया, part 1 का, I thought about it. अब I was too much into medicine and too much into psychiatry. So मैंने एक दो खाना ऐसे बैठ के उसका बड़ा हिसाब किताब किया, क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या चीजें हो सकती हैं, which field I should go, which field I should not go. I make my own questionnaire, उसमें सारे variables डाल के. अब उसमें उस वक्त I thought कि यार पाकिस्तान और दुनिया में सबसे important variable जो आपको फंसवा देता है आमतौर पे, that is the money. So I thought कि I'm going to keep it neutral. अगर एक जितने पैसे हैं psychiatry में और versus medicine, जो दो candidates हैं. So who will I choose? Actually, at the same time, it was respect, recognition, neutral, So I kept on neutralizing those variables which I thought were external, that were not a part of the kind of field. Karte end pe, ab it was the question where I want to go. It's medicine or psychiatry, just for the interest of students. End pe I had to conceptualize कि यार कुछ मुझे आसानी से समझ आए. So it came down to this analogy, which I enjoy somehow. It might make sense to some of you. I thought medicine is extremely good, just like a good wife. It's like everything is good. She's accepted socially. She is kind of considered good. She has duties, responsibilities, izzat, naam, sara kuch. But psychiatry is like the girlfriend who kind of holds your attention and, which never lets you kind of, think, dimag, mind, soul, everything is hijacked by her. So finally, I was like, yeah, I have to go to psychiatry. I cannot do anything else. Or वैसे भी मैंने हिसाब किताब किया, मैंने कहा यार medicine में there are a lot of people who want to do medicine. और मेरा अगर दिल उधर है, तो I won't be that successful. Or if I have a थोड़ा सा medicine का शौक है, तो in psychiatry I can उसका फायदा भी मैं उठा सकता हूँ ना psychiatry में. So ऐसे just like a very simple juvenile or my own subjective kind of thing, I made this decision. Or when I make a decision, तो I somehow kind of, I don't care कि बाकी क्या सोच रहे हैं, doesn't matter. I just move on. अब मैंने एक और इत्तेफाक से, मैं और अम्मी मेरी बैठी हुई थी इत्तेफाक से ना, तो हमने ऐसे ही, मैंने कहा यार कुरानदाजी भी करते हैं, I mean just for sake of fun. तो हमने ना 6 कागज के ऊपर ना मेडिसिन और साइकेट्री लिखा. मैंने खुद
और उसको जब मैंने I sorted, I kind of picked up just for kind of, okay, what happens, let's see. Somehow I'm still like, it's unbelievable for me. It was all 6 were like psychiatry. The paper I picked. So I was like, acha yaar, ye to, because you know, you're always looking for a validation also from somewhere. So if you don't have a lot of friends, I had friends, but I was always living with myself. I had this full internal imagination and fantasy jahan pe I was my own mentor, I was my own guider. I did not have a strong connection with a parent. I did not have a connection with friends. ना कोई mentor था इस तरह. So ना कोई भाई था कोई बड़ा छोटा इस तरह कोई चीज. So it was just myself and the ideas which I had learned over the period of time. तो इसका फायदा भी हुआ. नुकसान ये होता था कि हर काम मुझे बहुत लंबा चक्कर काट के आना पड़ता था somehow, because I had to make sure what I'm doing is kind of I would like to do that. और लेकिन उसका फायदा ये होता था कि I would know all the mistakes you can possibly make, all the irrational decisions, all the rational decisions. तो खैर ये इसी तरह मैं सीखता रहा. अब क्या हुआ, साइकेट्री की मैंने एग्जाम दिया, I got selected. उस जमाने में साइकेट्री में बहुत कम लोग थे. So जब मैंने किया क्लियर, तो I was the only one from Punjab. I was passing part 1. फिर IM, अच्छा खैर ट्रेनिंग शुरू हो गई, सर्विसेज में मैंने ट्रेनिंग कर ली, IM किया मैंने, IM इंटरमीडिएट मॉड्यूल वो भी पास हो गया, पार्ट 2 ट्रेनिंग की, एवरीथिंग गॉट पास इन द फर्स्ट अटेम्प्ट. और मेरे ख्याल में गो बैक टू द मॉडरेटर शायद और सवाल पे काफी लंबा जवाब हो. नहीं सर, वी आर एंजॉयिंग इट, प्लीज कंटिन्यू. ओके, सो अच्छा मैं अब ये बताऊंगा कि सर्विसेज हॉस्पिटल में when I did my training, now I had a lot of medical officers who were doing psychiatry for a number of years and they somehow passed after I passed. Being a Chemcolian, आपको पता है जब Chemcolian goes to some kind of another hospital, तो अब एक Chemcolian का एक अब हम सारे Chemcolians हैं, I would say कि Chemcolians are not bothered by anybody else. They are not intimidated. They don't even have to show off, you know. They are, we've already kind of we topped somehow, we went to King Edward, Sara kuch. I was not very proud of King Edward somehow. I was never proud. In fact, uske reason ye thi ke I was very overcritical. And actually I wanted to go to Aga Khan University. तो जब मैं किंग एडवर्ड में हो भी गया तो I was very depressed. I was like, यार what the hell, मैंने तो जाना था. तो I passed my examination. I tried to go to AKU, लेकिन my father said, for example, he said कि अच्छा यार अगर बहुत ही मस्त है तो I'll sell some of the land. So he kind of emotionally kind of ऐसी story खींची कि I was like यार okay, not a big deal. फिर वो इंटरव्यू में भी कुछ ऐसे इश्यूज हुए somehow के जो मुझे अब जाके पता चला when I went as an examiner to AKU कि they don't really want any Chemcolian to come. होता ना आपके एक पॉलिटिकल एक साइंस होती है so कुछ ऐसी चीजें हुई which kind of अब प्रॉब्लम कहाँ था बेसिकली. प्रॉब्लम यहाँ था कि I wanted a structured system जहाँ पे students are taken care of somehow. जहाँ पे institution is helping you grow as a person. जहाँ पे institution is not using a set kind of ideology to influence the mind of a student. अब over the years I learned कि यार पाकिस्तान में जैसे मैंने पहले भी बताया कि philosophy का कोई scope नहीं है. Psychiatry is being overly kind of criticized. सोचना मना है, सच बोलना तो बिल्कुल ही मना है. Pakistan is more like sometimes वैसे तो I think record भी हो रहा है लेकिन बहरहाल it's like a मुनाफिकिस्तान. We're doing all, अब ये बड़ा मसला तो है but सच यही है. At least मेरा सच यही था कि I did not know what to do because I would see one thing and I'd think अच्छा ऐसे हो रहा है लेकिन करना ऐसे, अच्छा ओके चलो.
अब I'm a quick learner. I had my ideology, but बहुत जल्दी I learned कि यार I have to manage my ways to survive. ठीक है? जो philosophers हैं ना, philosophers के पास तमाम किस्म के philosophers मौजूद हैं. For example, if you want to do एक नंबर चीज, तो you'll have a एक नंबर philosopher. If you want to do something negative or you want to kind of excel, you can find another person who will tell you. For example, Machiavelli, जो जिसने The Prince लिखी, मेरे ख्याल में वही है, तो उसने कहा कि यार ऐसा नहीं है कि जो विलन है he can use any trick and he can succeed, while जो हीरो है वो अपने रूल्स चल रहा है, वो पीछे रह जाता है somehow. तो उसने कहा whatever it takes, go for it. Art of War में भी this same thing was going on कि यार mend your ways and succeed if you want to succeed. तो basically हम जो भी चाहते हैं, अगर हम वो करना चाहते हैं, तो then you have to change the rule book. So this was interestingly I kind of learned along the way. So अब मैं शुरू में जब मैं ट्रेनिंग हुई, पार्ट 1 2 सब कुछ हुआ, साइकियाट्री में आ गया. So अब very obsessed. I was like, yeah, ethics के पीछे अंदर ही घुस जाए आप, ethics क्या है, कहाँ से आ रहे हैं, morality कहाँ से आ रही है, professionalism कहाँ से आ रहा है, where are the roots coming from? Is it religion? Is it science? Is it humanism? So I was like searching all over the books. Psychiatric books तो 3-4 textbooks होनी, वो आपने पढ़ ली, थोड़े से में इतना text तो है नहीं. But I was like, yeah, I have to find it, I have to find what's happening. चाहे world history है, sociology है, anthropology है, philosophy है. Now I took a very strange kind of path, जहाँ पे I'm just searching. कोई खास aim नहीं है. जो भी topic है, जो भी case है, हर case में I'm just kind of self-involved. किताबें आ रही हैं, जा रही हैं. उस जमाने में क्योंकि computers नहीं थे बहुत ज़्यादा, नया काम शुरू हुआ था, तो I had to purchase books, philosophy की somehow किताबें लाना, पढ़ना. अब philosophy जो है ना, उसके लिए आपको बहुत टाइम चाहिए, पढ़ने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए, समझने के लिए. कई दफा आपको एक बात पढ़ते हो, आपको 10 साल बाद समझ आती, कई 15 साल बाद, कई 20 साल बाद, क्योंकि प्रिंसिपल सेम होते हैं, लेकिन यू आर चेंजिंग, आप एवोल्यूशन में होते हैं. अब बचपन में माय फादर somehow, although he never read a book of philosophy, हमने जब मैंने देखना शेल्फ पे, तो ना फिलोसफी की किताबें पढ़ी हुई हैं, सार्त्रे की बीइंग एंड नथिंगनेस पढ़ी हुई है, बर्ट्रैंड रसेल्स के सारे एसेस पढ़े हुए हैं, सोक्रेटिस और मुख्तलिफ किस्म की किताबें. अभी भी whenever I go and I find there's some new book on the shelf and I'm like, yeah, I never saw this book. तो I don't know, he secretly puts it और क्या चक्कर है, I still have to find out. तो कभी कोई रशियन लिटरेचर पढ़ा है, कभी कुछ, तो probably what he says कि यार I love to read book, तो मैं लेके रख लेता हूँ, तो somehow he keeps on reading from the libraries. और ये किताबें जो मेरे हाथ आती हैं, वो फिर मैं गायब करके ऊपर अपने कमरे में लेके जाके फिर पढ़ के लाइनें लगा के, जैसे आपके ज़हन में होता है कि अच्छा, जैसे आप टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं उस तरह. And you draw and use those things somehow in very strange kind of ways. अब क्या हुआ कि same thing happened to me. तो अब साइकियाट्री के अंदर अब routine patient was not an issue. Treatment was not an issue. For the first 2 years when I was getting trained, I was heavily influenced by anti-psychiatry. अच्छा जी, अब ये क्या शुरू हो गया, anti-psychiatry कहाँ से आ गए? तो now I learned कि यार psychiatry पूरी दुनिया में बाकी शोबों के against कोई शोबा नहीं होता. We don't have anti-cardiology, we don't have anti-ophthalmology, we don't have anti-surgery. But psychiatry में there is a group of people, पढ़े लिखे लोग, even psychiatrists, who are against psychiatry. मैंने कहा, what is happening? Let me find out. And now I realize कि psychiatry में बहुत ज़्यादा politics है, बहुत ज़्यादा scientific inaccuracy है. I learned that science can be used to gain whatever you want to do. आप जो काम करना चाहते हो, आप उसकी फेवर में चीजें ला सकते हो. जो काम करना चाहते हो, जैसे हमने रिलीजन में भी देखा है कि अच्छा जो मौलवी है, वो आप जो चाहते हो, you can find some reasons because there's so much data.
अगर एक अच्छा लॉयर है वो आपको जो भी, वो आपको चोरी करने का भी जवाब, कत्ल करने का जवाब भी आपको दे सकते हैं. सो इट्स डिपेंडिंग अपॉन द नियत, इट्स डिपेंडिंग अपॉन हाउ एंड व्हाट यू वांट टू डू, हु इज कॉलिंग द शॉट्स. अब साइकेट्री में क्या हुआ कि अब आई समहाउ आई सफर्ड, I suffered also because again now I was going through things, I was reading material. अब ये जो psychiatrists थे जो history में who became anti-psychiatrists, they had very strong convincing arguments. They were like one of the best psychiatrists of their own times. They were Harvard graduates, बहुत नाम, किताबें भी लिखी, research work भी किया. तो अब उनके arguments, they were not kind of easily refutable. And then you realized that there is such a biological influx of pharmaceutical intervention. कहाँ से critical psychiatry का नाम इसने अभी बताया आपके introduction में, तो critical psychiatry was just this, that यार whatever you are doing, you have to know the real evidence. You can sift through the bad evidence, you can find the real evidence. उसमें again अब मुझे नई बात समझ आई कि यार research is not research, it's a plethora of work. एक झूठ का अंबार है जिसमें से सच निकालने के लिए now you have to find what kind of right evidence holds water. ठीक है? So the skeptic I wasn't kind of accepting anything as it was. तो करते 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 दुनियाए psychiatry के I found some big names which I thought, who are making a strong argument, who have good evidence. और जब आपके पास evidence, अगर हम अकल की बात करें, rationality की बात करें, when you have a stronger argument, it replaces the weaker argument. And sometimes a weaker argument is just weak because of the evidence. And some of the arguments में जो nature of evidence है, that cannot be objectively put forward. So बहुत सारे areas में I learned that subjectivity would be the final truth for you. यहाँ पे शुरू होता है आपका customized psychiatry, यहाँ पे शुरू होता है psychodynamics, यहाँ पे समझ आती है Freud, what is Freud all about. अब जो भी ट्रेनिंग मैंने की, जो भी किताबें पढ़ी, अब इसमें ये चीजें थी नहीं, प्रैक्टिस में थी. Not everybody was practicing this, but अब यहाँ पे मुझे समझ आई कि यार अगर साइकियाट्री सीखनी है, you have to find some real time mentors who know the thing, who know what is happening, who knows, उन्होंने अपने 50 साल गुजार के, who have kind of made things easier, who has deciphered the truth, who have deciphered the puzzle. यहाँ पे again फिर I would go for international teachers. I met, अच्छा मेरे जो भी टाइम मिला मुझे इसमें, I tried कि I work with all the top names present at that time. So मैंने सुबह सर्विसेज में जाना, शाम को I joined Professor Saad Bashir Malik's clinic. मैंने शाम को उनके मरीज देखने, how is he seeing them, उसके बाद उन्हें ब्रेक करनी, फिलॉसफी में गपशप होनी. हर साइकियाट्रिस्ट का अपना एक स्टाइल होता है. Somebody is very structured. हारून रशीद के साथ काम किया. Harun Rashid was very unstructured, very friendly. He would connect with Amir Gharib, and amazingly working day night. Like 3 बजे भी रात को मरीज देखे जा रहे हैं प्राइवेट में. अक्रम कॉम्प्लेक्स में I used to see his private patients. और फिर इसके बाद नासिर साहब के साथ सुबह काम करना, यूनिट में 3-4 कंसल्टेंट्स होने, सबके डिफरेंट काइंड ऑफ स्टाइल होना. डॉक्टर शाहिद वारिस पिछले दिनों वफात पा गए. I spent some time with him, and he was very obsessive about psychiatry. और उससे मैंने history वगैरह सीखी. I realized कि okay, this is how you can go about. Dr. Sumira, she was very good at patient doctor. बड़ी स्पीड से ना she would interview, और उसमें मरीज को सोचने का टाइम नहीं मिल रहा, आंसर आ रहा है. So you have to be very quick in thinking. और जो एविडेंस आ रही है, अगर आप अगले को सोचने का टाइम नहीं दे रहे हो, he cannot make up answers. The first answer is the right one, and तो this technique is खास तौर पे उनकी बड़ी जबरदस्त मशहूर है. It's kind of
amazingly. जो लोग सर्विसेज में काम करते हैं उनके साथ they might have witnessed. Nasir Saab, Professor Nasir Saab, I learned he had a very good diagnosis. He was very clear in his mind about main things. और उसी के दायरे के अंदर रहते रहते he was quite a good kind of diagnostician. और दवाइयाँ भी उन्होंने ख्याल से शुरू करनी मैनेजमेंट में. साद बशीर साहब का अपना एक स्टाइल था, बहुत रिफाइंड, वेरी सुपर रिफाइंड पर्सन, वेरी नाइस, ग्रेट काइंड ऑफ साइकियाट्रिस्ट. अब हर बंदे के साथ काम करते करते आई रियलाइज दैट everyone has their own flavor which they have to find, nurture, and then they have to create a brand. They have to bring that thing in practice. इनमें से अच्छा, अब मुझे somehow कहीं ना कहीं से forensic psychiatry का भी शौक लग गया somehow. Forensic psychiatry is a psychiatry जहाँ पे psychiatry और law का ताल्लुक आता है, जो जहाँ पे courts और evaluations इस तरह की चीजें आती हैं. इसमें मजा ये है कि जब कोर्ट की बात आती है, आपने जब कोई चीज कोर्ट में लेके जानी है, so now it's not the evidence which you are using on one person, it's something which has to be above all the arguments, highest level of evidence, highest level of truth, जिसके ऊपर केस होगा पूरा, अगला लॉयर, अगली टीम. तो इसमें जो मुझे मजा आया कि यार you have to kind of take that evidence sifting or researching thing to the next level. क्योंकि अब आपने हर बात में कसम खा के, ओथ लेके आपने लिख दिया कि यार ये दुनिया में हो रहा है और ये हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है और मेरा ये ओपिनियन है. सो इस किस्म के डॉक्यूमेंट्स बना के आप जब कोर्ट में दाखिल करते हैं तो उसमें बड़ा, उसमें एक मजा भी आता है, थ्रिल है, एडिक्शन है. I somehow loved it. I was kind of hooked on it. So एक बड़ा मशहूर केस था खिजर हयात का. There was this mentally ill patient. तो I learned that he's being hanged, or I ran into a very enthusiastic group of lawyers who were foreign trained, who were working for him. And when they talked to me, तो they said, "Hey, डॉक्टर साहब, आपको पता है कि ये इनको फांसी नहीं लगनी चाहिए?" तो मैंने कहा यार हमें ही तो पता होना चाहिए, एज अ साइकियाट्रिस्ट, इट्स आवर ड्यूटी. और मैं क्या, हर साइकियाट्रिस्ट को पता है. तो दे वर वेरी सरप्राइज. उनका अच्छा, आप कुछ लोगों का साइन ला सकते हैं मर्सी अपील के लिए, क्योंकि उसकी डेथ सेंटेंस, जिन दिनों टेररिज्म का मसला हुआ था ना, उन दिनों डेथ पेनल्टी उठा दी गई थी और फांसी की तारीख सुना दी गई थी. तो मैंने कहा यार व्हाई नॉट. सो नाउ आई स्टार्टेड साइकियाट्रिक एडवोकेसी फॉर मेंटली इल प्रिजनर्स. पूरे पाकिस्तान के जितने साइकियाट्रिस्ट मुझे पता थे, सबको ईमेल से आ रही हैं, फोन से आ रहे हैं, करते करते रातों रात, बिकॉज अगले दिन फांसी थी, आई गॉट लाइक 100+ सिग्नेचर्स, सारा कुछ. तो उन्होंने कहा यार ये डॉक्टर साहब, हमें तो बस 8-10 ही बहुत थे ना. तो मैंने कहा ओके, पहले बताना था. अब क्या हुआ कि यहाँ से हमारा एक रिलेशनशिप स्टार्ट होता है फोरेंसिक साइकियाट्री का. आई हैड कंप्लीटेड माय एमबीबीएस किंग साइकियाट्री डिग्री, एफसीपीएस. जब एफसीपीएस का आखिरी साल था तो मेरी ट्रेनिंग खत्म हो गई सर्विसेज में. सर्विसेज में ट्रेनिंग खत्म होती है, 6 महीने का गैप आ जाता है somehow. उन्होंने सीपीएसवी में उस वक्त एक रूल बनाया कि जब आपकी पढ़ाई खत्म हो तो एग्जाम से पहले 1 महीना बीच में होना चाहिए. A simple guy as I am, somehow I thought okay, 1 महीना है, so रूल बन गया, okay, follow the rule. I never kind of contested. मैं कहा 6 महीने और मिल गए, और पढ़ते हैं, आराम से पढ़े रहते हैं साइकियाट्री डिपार्टमेंट में. पैसों की बात है, कोई बात नहीं, doesn't matter. One of the house job I did was on honorary basis already. Psychiatry I was paid. अब मैं 6 महीने पढ़ा हुआ हूँ साइकियाट्री डिपार्टमेंट में. I was just running their EG department. और मेरे ज़हन में था कि जब तक टास्क पूरा नहीं होता ना, I'm not going to move from this place. अब मैं जा रहा हूँ डेली साइकियाट्री डिपार्टमेंट, मरीज देख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, सब कुछ चल रहा है. Finally, I got this medical officer job at Mental Hospital, PIMH, Punjab Institute of Mental Health. Now my professor, Professor Nasir Said, he says, Usman, don't go to mental hospital. It's not academically oriented, तो तुम exam pass नहीं हो सकेगा. अब मैंने my argument was कि यार it's not possible that I am working with 1400 psychiatric patients admitted और वहाँ मैं job कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ. तो
आई वांट सम स्टिमुलेशन, आई वांट दोस पेशेंट्स। और मैंने कहा जी डॉक्टर साहब आपके आप उस्ताद हैं, एक दीवार के इस साइड पे मेंटल हॉस्पिटल है, एक साइड पे आप लोग हैं, तो मैं दूर थोड़ी जा रहा हूँ, तो कोई पैसे भी आ जाएंगे हुकूमत से, थोड़े से खर्चा भी चल जाएगा। मैं कहा चलो ठीक है, ये बात ठीक है। नाउ आई वेंट टू मेंटल हॉस्पिटल, एक और दुनिया, एसाइलम कल्चर, सिक्योरिटी बेस्ड, फोरेंसिक सिक्योरिटी बेस्ड। पाकिस्तान का अगर हमें कोई सिक्योरिटी बेस्ड फोरेंसिक कल्चर कहना हो तो दैट वाज द प्लेस। अब वहां पे आई वाज वर्किंग, डॉक्टर इस्माइल तारिक हमारे साइकियाट्रिस्ट हैं, ही वाज माय मेडिकल ऑफिसर इनिशियली एट सर्विसेज, नाउ ही वाज माय कंसल्टेंट। तो वहां पे कंसल्टेंट्स होते हैं और मेडिकल ऑफिसर्स होते हैं। अब मैं मेडिकल ऑफिसर हूँ, पढ़ाई शढ़ाई चल रही है, अल्लाह का शुक्र है, वहीं बैठ के मैंने एग्जाम पास किया, आई क्लियर्ड माय एफसीपीएस। एंड एट दैट टाइम आई वाज ओनली एफसीपीएस इन ऑल द पीआईएमएच के अंदर जितने भी 18-20 कंसल्टेंट्स थे, तो आई वाज द ओनली डिग्री होल्डर। बट आई वाज गेटिंग पेड फॉर अ मेडिकल ऑफिसर। उस जमाने कोई मेरे ख्याल में 18,000 होते थे, बाकी एवरीबडी वाज गेटिंग 70-80,000। अब वहां पे फिर आइडियलिस्टिकली फिर मुझे क्या चोट पहुंची, क्या हुआ, जो हेड थी वहाँ की, नुसरत हबीब राना, वेरी फोर्सफुल, नाइस, गुड वुमेन, उन्होंने कहा डॉक्टर साहब आप ऐसे करें, इफ यू वांट टू डू द फलाना फलाना यूनिट है, व्हाई डोंट यू सी पेशेंट्स एंड हेल्प अस डेवलप इट एंड वी विल, यू कैन हैव योर ओन स्ट्रेटजीज, और जो भी हो सकता है। अब मैंने सोचा, अब दोबारा से मैंने सोचा मैं कि यार आई हैव डन माय एफसीपीएस इन्हीं पेशेंट्स के साथ और सब कुछ, आई हैव टू गिव बैक टू समथिंग टू सोसाइटी, तो लेट मी स्पेंड सम 1 ईयर। तो जॉब तो बाद में करनी है आपने, एकेडमिक चले जाएंगे जहाँ पे जाना हुआ। अब मैं मजे से काम कर रहा हूँ, आई एम नॉट लुकिंग हियर एंड देयर फॉर जॉब्स, आई एम वर्किंग ओवर देयर, काम हो रहा है। अब एक दफा मैं गया तो मुझे उन्होंने कहा जी आपको बड़ा शौक है फोरेंसिक्स का, तो हमारी मीटिंग होती है हर मंथ, तो आप आए, हम डिस्कस करेंगे मेंटल हेल्थ लॉज और सब चीजें। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। अब जब मैं मीटिंग में गया एक दफा, तो आई लर्न के दे वर रीडिंग द बुक कॉल्ड ल्यूनेसी एक्ट 1912। मैंने कहा मैडम 2011 में तो नया रूल आ गया पूरे पाकिस्तान में, देयर वाज दिस मेंटल हेल्थ लॉ कॉल्ड मेंटल हेल्थ लॉ 2011। there was a massive shift from 1912, हम एक 1912 यूज कर रहे हैं किताब, अब तो 2011 में नया आ गया, तो ये तो चेंज हो गई सब किताबें। तो they were very surprised that how much mental institution was uh, marginalized from the main psychiatry going on, कि यार पाकिस्तान में नया कानून आ गया, वहां पे कुछ खबर नहीं है। इससे ये भी पता चलता है कि कोई कानून असल में इस्तेमाल हो ही नहीं रहा था, और आज तक नहीं हो रहा, अनफॉर्चुनेटली। सो आई वाज थ्रिल्ड, दे वर आल्सो सरप्राइज। हमने कहा नई किताबें मंगवाई, सारा कुछ किया। अब आई मेट डॉक्टर नासिर एंड वी ट्राइड इफ आई कुड बिकम अ सीनियर रजिस्ट्रार एट सर्विसेज हॉस्पिटल। हमने जॉब मिल भी गई, बातचीत भी हो गई, बट दैट टाइम साइकेट्री में इतनी अपॉर्चुनिटी थी कि आई वाज offered a job as a head of department at a private medical college, Akhtar Medical College. तो अब आई एम जस्ट फ्रेश ग्रेजुएट, एफसीपीएस किया हुआ है, आई एम, इन सब से मैंने इजाजत लेके कि इफ यू अलाउ मी देन आई विल गो, जो उन्होंने अलाउ किया। आई हेडेड द डिपार्टमेंट राइट अवे, आई वाज एफसीपीएस, आई जस्ट 2-2.5 साल मैंने वहाँ पे लगाए, और उन 2-2.5 सालों में आई वाज लाइक यार आई एम टू, इट्स टू अर्ली टू हेड द डिपार्टमेंट, ना अभी आई एम नॉट, because I actually wanted to enjoy all those posts, you know, कि senior registrar आप बने, trainees को आपने खींचा, पढ़ाया, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स बनाए, फिर आप सीनियर रजिस्ट्रार, फिर आप आगे स्टेप वाइज गए ना, असिस्टेंट, एसोसिएट, सब कुछ। तो अब मेरा शुरू ही हेड ऑफ डिपार्टमेंट से हो रहा है। अब वहाँ पे खैर और एक लंबी स्टोरी है कि मेडिकल एजुकेशन हमने स्टार्ट कर दी पूरे कॉलेज को। अब मैंने मेडिकल एजुकेशन के वर्कशॉप्स करानी शुरू कर दी, हाउ टू टीच, what not to teach, what is the strategy. यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस में मेडिकल एजुकेशन का पहली दफ़ा पढ़ाने का जो प्रोग्राम आया, तो वी स्टार्टेड विद दैट। तो वहाँ पे आई गॉट माय चेयरमैन टू स्पॉन्सर मी फॉर दैट प्रोग्राम, और इंग्लैंड से 2 बड़े ज़बरदस्त मेंटोर्स, इयन जेनेट एंड जेनेट विलियम्स, जेनेट स्ट्रिबन्स, ये 2 उस्ताद थे, इन्होंने आना यूएचएस में, वो पढ़ाई शुरू हो गई। अब फाइनली आई मीट
the greatest mentor in my life, one of the greatest mentor, who actually showed me what is happening. And this was the Vice Chancellor of UHS, Professor Mubashir Hussain Malik. Now I meet this guy. पहली मेरी इंटरेक्शन होती है व्हाट्सएप के ऊपर किसी ऑफिशियल साइकेट्री के ग्रुप के अंदर. एंड नाउ व्हेन वी कनेक्ट एंड ही सेज कि यार तुम्हारा दिमाग थोड़ा सा तुम थोड़े से पागल हो, तो आई वुड लाइक टू सी यू. मैंने कहा बिल्कुल, मैं थोड़ा नहीं, मैं बहुत पागल हूँ. So I would love to see you also. So we meet at a forensic psychiatric workshop at UHS, and that was a magical meeting. We sat down and we had a long talk. मुझे उन्होंने स्टेज पे के बिठा लिया. अब एक discussions चल रही हैं, international speakers बैठे हुए हैं, and now we started bonding together. Now इसके बाद क्या हुआ कि 2-3 साल तक daily we would have hours of discussions psychiatry के बारे में. I had a lot of thirst for psychiatry, and he had a lot of experience. He was the first one to be trained at Maudsley Hospital from the subcontinent. He was a topper, King Edward के top gold medalist. उन्होंने MS पहले मेडिसिन में डिग्री ली, अब्बा जी के सामने पेश की, and then he went अपने शौक से psychiatry की डिग्री लेने गए. वहां से इंग्लैंड से डिग्री लेके ही डिसाइडेड टू कम बैक एंड सर्व. यहाँ पे लिफ्ट नहीं, जिस तरह होता है लिफ्ट नहीं होती इतनी, लाहौर में लिफ्ट नहीं हुई. ही वेंट टू पिंडी, एक दरख्त के नीचे कुर्सी डाल के उन्होंने कहा जी मैं यहाँ से शुरू करूंगा. करते करते द प्लेस ही स्टार्टेड हैज नाउ बिकम द इंस्टीट्यूट ऑफ साइकियाट्री, वेरी वेल रिप्यूटेड प्लेस. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कोलैबोरेटिंग सेंटर है. नंबर ऑफ प्रोफेसर्स, अभी इस वक्त इतने प्रोफेसर्स हैं पाकिस्तान में, including the current president, Pakistan Psychiatric Society, Professor Imtiaz Dogar from Faisalabad, my own professor, Professor Nasir Said Khan, and number of other professors, very prominent ones. Dean of Psychiatry, Professor Farid Minhas, retired, Professor Muhammad Hussain Rana, very big name. ये सब थे इनके शागिर्द. इन सब को he handpicked, मुख्तलिफ शोबों से उठाया, साइकेट्री में लेके आए. उस जमाने में फैंटियां लगती थी, फैंटियां बाल खींच खींच के चपेड़े पड़ रही हैं, फैंटियां लग रही हैं, पढ़ाने के लिए बंद कर देते थे. दे वर वेरी फोर्सफुल प्रोफेसर्स, अब इस वक्त तो हम नहीं सोच सकते आज कल के भाई आप किसी को कुछ कह भी सकते हैं ना, आप मार नहीं प्यार वाला जमाना है. बट आई वाज वेरी फैसिनेटेड कि यार अच्छा, द गाय वांटेड साइकियाट्री टू फ्लरिश विद फोर्स, विद जो हो सकता है ना, दैट काइंड ऑफ थिंग. So अब जब इनसे मिला, now जब जिस टाइम पे मिला, he was 70 plus, so now he had toned down to a very nice spiritual master. He introduced me to the spiritual world somehow. I was coming from a background of philosophy, so now I had this exposure to the world of spirituality. 3-4 साल I met a lot of other mentors, I met a lot of interesting people, and now I learned that psychiatry has to be learned outside the department, outside the field, outside the patients. You have to be in the society. You have to meet the so-called regular students, regular people, regular kind of society members. तो यहाँ से एक नई learning शुरू हुई कि यार how to make things work, how to emotionally connect, how to succeed in a abnormal environment, how to make things work, how to do as Romans do, तो यहाँ पे आपको अपनी आइडियोलॉजी थोड़ी सी आपको मैनिपुलेट करनी आ गई, आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी क्रिएट की गई. मैं प्रोफेसर नासिर सईद खान, व्हेन आई वाज पार्टिंग फ्रॉम सर्विसेज हॉस्पिटल, तो मैंने कहा आप डॉक्टर साहब मुझे कोई एक फीडबैक बताएं, समथिंग यू वुड लाइक टू टेल मी. तो उन्होंने कहा उस्मान, somehow you always you are able to offend the other person to a very great level and you don't know about it. So somehow that was pretty much true. मेरे ऊपर बहुत सारे professors, VCs, a lot of, I offended a lot of people. एक टाइम ये भी था कि सर्विस हॉस्पिटल में प्रोफेसर फैसल मसूद, he said, प्रोफेसर नासिर सईद को बुला के उन्होंने कहा कि यार डॉक्टर उस्मान रहेंगे सर्विसेज में या आप यहाँ पे रहेंगे. ठीक है, वो बहुत लंबा वाक्य व्हाट हैपेंड.
जब भी कुछ हुआ, it was all based on miscommunication. It was all when you stood up for something which you thought was right and everything was against you. So in सब चीजों में से I would just go very casually. I was like, yeah, I'm on the right. I don't mind. Somebody wants to fight. Somebody can throw you out. Somebody can kick you out of the job. It's all right. Doesn't matter. So my ideas were myself, were kind of my friends. They are my friends. And these ideas won me a lot of good kind of friends, kind of who were students at some time. Yushe is here in this group probably. So Yushe, I remember I met him when he was in first year. So first year में जब ये आया तो ये और एक और दोस्त भी था इसका, तो we were having this top class kind of workshop and मैंने कहा यार, if you seem you will be coming to psychiatry, let me put you right where you would after some years. So just to give you a flavor. और इस तरह बहुत सारे लोग हैं. डॉक्टर अजीन यहाँ पे शामिल हैं. She is wonderful kind of psychiatric who is probably pursuing psychiatry. और बहुत सारे और students हैं. It's like countless kind of number. नए कॉलेज जहाँ मैं RLMC में हूँ, वहाँ पे lot of students they have this impact. और मुझे कहते हैं sir, we feel कि we have to come to this field. I think आपका टाइम शायद लिमिटेड होगा, 6 बजे तक है probably. Is it so, Asma? Sir, limited है. So should we Okay. move on to the next question? हाँ, please go ahead. Okay. Sir, as you said, you were exposed to a lot of turbulent emotions earlier in life. So do you think that sensitized you to the other people's suffering, or related to this, if a person is exposed to turbulent emotions earlier in life, so when he sees patients and he becomes a psychiatrist, so does that trigger his own trauma? And linked to that, who do you think should and should not become a psychiatrist? Okay. So अब हुआ ये कि जो चीज हमारे एक्सपीरियंस में है वही हम पहचान सकते हैं, वही हम जान सकते हैं, उसी में हम एक्सेल कर सकते हैं. अगर किसी को कभी ट्रॉमा नहीं हुआ, किसी ने सफरिंग नहीं देखी, किसी का दिल नहीं टूटा, they won't experience, they can't empathize truly that how the other person is feeling. इसीलिए स्पिरिचुअलिटी में भी और मेरे ख्याल में साइकेट्री में भी आपका दिल टूटना बहुत जरूरी है. यू हैव टू सफर, यू हैव टू फील कि कुछ हुआ है. अब जब आपको पता चल रहा है अगले का भी टूटा है, अगले की भी उम्मीद टूटी है, डिजायर टूटी है, ट्रॉमा हुआ है, किसी को कोई छोड़ के चला गया, कहीं को कुछ हो गया है, अब नाउ यू कैन कनेक्ट विद दैट पर्सन. अब आप अगले के साथ कनेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, क्या ट्रॉमा करेगा, लाइट अप करेगा आपके एमिगडाला को, करेगा, बिल्कुल करेगा. बट ओवर द इयर्स यू हैव सुपर कंट्रोल्ड योर ट्रॉमा. यू हैव काइंड ऑफ, यू आर द मास्टर ऑफ द ट्रॉमा. यू कैन सेंस ट्रॉमा लाइक दिस. अभी ट्रॉमा शुरू भी नहीं हुआ, यू कैन सेंस कि ओके इस फैमिली में ट्रॉमा आना ही आना है. ये टीनेजर जो अभी सवाल कर रहा है, इसमें पूरी लाइफ ही इसकी एक सवाल बन जानी है. बिकॉज यू नो एवरीबडी इज गोइंग टू क्वेश्चन. ये बंदा जो कोई सवाल नहीं कर रहा, ये चलता जाएगा आराम से, बिकॉज ही इज नॉट रबिंग द रॉन्ग शोल्डर्स, राइट. तो नाउ यू कैन डू लॉट ऑफ प्रेडिक्टिव वर्क. अब आपका तीसरा सवाल था कि आपका ट्रॉमा बढ़ाएगा कि नहीं बढ़ाएगा, इस तरह कुछ. मतलब इट ट्रिगर्स योर ओन ट्रॉमा या आप थोड़ा सा अच्छा आसमा, मैं इस पे यहाँ पे ये कहूँगा कि I'm a very imaginative person and I love to create a drama. Sometimes I do think I had some kind of autism where I had a lot of fantasy going on. I was in my imaginary world. जहाँ पे कुछ अर्सा I was a superhero. Sometimes I had these superpowers. Sometimes I would think I can do this, you know, playing with my own self. इस तरह. अब to understand things, I would kind of become that person. अब जरूरी नहीं कि मेरी जिंदगी में इतने ट्रॉमा हुए नहीं है कि मैं कहूँगा ये ट्रॉमा हुआ तो डॉक्टर साहब उस्मान बने. नहीं, ऐसा नहीं है. ट्रॉमास आर वेरी जनरल, बट आई एक्सपेंडेड देम आउट ऑफ द प्रोपोर्शन.
कोई दिल ऐसा नहीं टूटा कि कोई मैं कहूँ ये बड़ा दिल टूटा है। अभी तक मेरी हसरत है कि दिल टूटे, लेकिन नहीं टूटा somehow. अभी तो I think I'm a very big kind of a liar. I'm like manipulator. I'm a liar. Whatever I read, I kind of imbibed. दो philosophers का था, मैंने समझा कि शायद मैं भी वही हूँ, but actually नहीं है ऐसा. I'm extremely party lover. I love to have a lot of fun. I love to have a lot of pleasure, hedonism. I love to use lie as a tool, as an exercise. I love to manipulate situations. क्योंकि आपको अगर किसी और को एनर्जी देनी है, पेशेंट को लेट्स से, ऑनेस्टी से कुछ नहीं हो रहा. Being too honest is not helping. It's not my flavor, frankly. For me, lying is creating more interesting connections in the brain. So lying is also kind of exercise where you can lie about your own self. क्योंकि अब आपने जहाज उड़ाना है तो असल जहाज में बैठने से पहले you have to go on a simulation. Simulation, अभी दिमाग की simulation होगी आपके अपने created सच और झूठ, और जितना आप create कर सकते हैं. So अब for example you meet a person, the more amount of simulations you can create, more kind of expected behaviors you can create, more kind of interactions you can create. वहां से आप you can find the right answer. अब ये सब जो चीजें चल रही थी, जो कि चल रही थी, तो somehow I realized कि यार इस चीज की एक्सपर्टीज तो है ही सोशल इंटरेक्शन, and a lot of brain kind of mind-boggling kind of exercises जहाँ पे you are messing with the other person's brain. तो मुझे यही मसला भी होता है कि यार I don't want to instigate someone who is not on the path. जो पहले से ही path पे है, that is fine. लेकिन invariably I do kind of at the end मुझे लगता है कि यार मैं अगर नहीं, क्योंकि ना आपका जब इंटरेक्शन होगा, human mind 400 billion cells, they are going to rub the other person in some way. उसको जो स्टिमुलस चाहिए वो मिल जाएगा, चाहे वो भी तैयार है चाहे अभी तैयार नहीं है. So I never ask anybody to choose psychiatry, frankly. That would be according to the topic. I never say, बल्कि I say psychiatry will choose you. अगर psychiatry को आपको कीड़ा लग गया, वायरस हो गया आपको, अब आप कहीं और नहीं जा सकते. आप जाएंगे भी तो बीच में होगा कि यार मैं इधर क्या कर रहा हूँ, why am I here? I need to go that place. I love that place. वो आपके पीछे पड़ जाएगी चीज. And more open you are to yourself, the right thing will come. और ये I think किसी भी फील्ड के लिए ट्रू है. It's not only psychiatry. तो मेरा सिर्फ एडवाइस तो मैं वैसे ही नहीं करता हूँ. So I always say कि यार मुझे ऐसा लगता है, don't let any prejudice reach you. क्योंकि we don't know who we really are. हम अंदर से हम कौन, हमारे अंदर कौन बैठा हुआ है ना. तो आई एम जस्ट कंसर्न कि भाई मेरे अंदर कौन बैठा हुआ है. तो आई थिंक सम रियली ट्विस्टेड पर्सन इज देयर. We got a question that if a person is aspiring to pursue psychiatry, what would you suggest should they do that adds up to their CV? That adds in their CV. अगर तो हम एकेडमिकली बात करें तो एकेडमिकली सीवी के अंदर वो तमाम चीज़ें हेल्प करेंगे जो हमें वैसे ऑलरेडी पता है. इट्स काइंड ऑफ volunteer work, doing some work about internship, doing something mentally health related, कोई career counseling, free suicide counseling, इस तरह की चीज़ें ना जो सीवी में डालते हैं आप. फिर some collaboration with researchers, कोई छोटी मोटी रिसर्च. अभी आज यूशन ने एक रिसर्च इसकी छपी है अभी, he was doing some work. रिसर्चेस में नाम शाम आ जाए, आप उसमें कोई थोड़ा छोटा मोटा काम शुरू कर दें. कोई आपने कोई पेशेंट्स देख लिए, कोई भी इस किस्म की चीज जो सारे शोबों में, इसमें साइकेट्री का कोई खास नहीं कि साइकेट्री में ऐसी चीज होनी चाहिए. तो मेरा ये ख्याल है. So basically, what a good psychiatrist should be, he or she, they should be a well-rounded person all over. Not necessarily. We don't have a recipe for psychiatry. In fact, there is no recipe. Anyone
can or cannot be a good psychiatrist. क्योंकि इसमें ना हमें सबसे पहले चूज करना पड़ेगा what is goodness. So हो सकता है मेरा गुड जो है वो totally आपका किसी और का गुड ना हो. मैं I would like to recite one of the comment from Nietzsche's book. इसकी एक book है that is called Natural History of Morals. तो वो कहते हैं कि all these moralities that address themselves to the individual for the sake of his happiness, as one says, what are they but counsels for behavior in relation to the degree of dangerousness in which the individual lives with himself, a recipe against his passions, his good and bad inclinations. So Nietzsche कहता है basically कि हमें जब लोग कहते हैं ना ये आपके लिए अच्छा है, ये आपके लिए बुरा है, तो basically they are pushing you away from your natural inclination. अब आप में से अगर कोई शेर है, शेर will go to a difficult territory, he will hunt down, he will not be scared. लेकिन अगर उस शेर के साथ कोई गधा है, वो शेर को कहेगा कि यार why are you going? It's not good for you. You might be in dangerous condition, you know, this kind of thing. So every person has to find his own reasons for going to a certain. So some of you are cut out to be surgeons, and they must go to surgery if that calls them. Some of you might be best for basic sciences. If for someone physiology speaks to them, they must go to the physiology. कोई रिसर्च का कोई बंदा है, उसको रिसर्च अट्रैक्ट करती है, you must go to the research. तो रेसिपी नहीं है, ये कोई केक नहीं है कि केक की रेसिपी बता दें, नहीं. ये कोई पास्ता नहीं है कि पास्ता में कौन से सॉस डालें तो ऐसा हो जाएगा, नहीं. हाँ, ये जरूर मैं कहूंगा कि जो बातें एक अच्छा इंसान बनने के लिए जरूरी हैं, अच्छा डॉक्टर बनने के लिए जरूरी हैं, वही बातें कम से कम जरूर होनी चाहिए. एटलीस्ट यू इफ यू कैन थिंक. जो सोच नहीं सकता, साइकियाट्री में चल जाते हैं, बगैर सोचे वाले भी चल रहे हैं, अच्छे भी चल रहे हैं somehow. But अगर मेरा point of view होगा तो those people who cannot think in abstract terms, who cannot connect to the other person, who cannot create an emotional bond, who can't pick up the emotional cues, they have I think they won't be having those set of skills. तो ये set of skills है basically जो हम train भी कर सकते हैं. Thank you, sir. Sir, there is this perception and there's this fear that once you become a psychiatrist, और आप on hands practice नहीं ले रहे, obviously you are not putting in IV lines, you are not operating, so you gradually lose the clinical skills. How would you address that? Is that true? And does it have an IV line impact? लेनी, आपने IV लेनी है, IV line लेनी है इमोशंस के अंदर. आपने अगले बंदे के इमोशनल जो सिस्टम है उसके अंदर IV line लेना सीखना है ना. इट्स अ न्यू ट्रिक नाउ. I don't need to take an IV line of the person who's coming to me, but I need to connect with that person. So जब आप कोई नई स्किल लोगे, कुछ स्किल्स जाएंगी. सारी स्किल्स IV लाइन के लिए अब नर्सिंग सिस्टम पूरा बैठा हुआ है. मुझे आज तक किसी मरीज की IV लाइन लेने की नहीं जरूरत पड़ी. अगर जरूरत पड़ेगी तो आई कैन गेट इट. ठीक है ना. सो ये दौर है अब सुपर स्पेशलाइजेशन का. वी हैव टू नो मोर एंड मोर अबाउट लेस एंड लेस. ठीक है. तो अगर चली भी स्किल तो ठीक है यार, पूरी दुनिया में ऐसे है. सो व्हाट, क्या हो गया फिर? मतलब आप ये कौन सा, मतलब दिस डजंट मेक्स अ स्ट्रांग आर्गुमेंट फॉर मी. So that is not a valid fear when choosing psychiatry. यार मतलब ठीक है, आपने क्यों लगाना है? मतलब बहुत सारे लोग नहीं लगा रहे. मतलब वो जो है IV लाइन, आप ये सोचो ना, अगर आपको एक IV लाइन लगानी आ जाती है, जब भी दोबारा जिसको आ गई है बेसिकली ना. अब मैं when I was doing a lot of jobs, प्राइवेट जॉब थी मेरी, प्राइम केयर हॉस्पिटल था डिफेंस में. I was doing job, I had no surgery background, मैंने कभी टांका नहीं लगाया था. But I thought about it कि यार अब जब टांका लगाना पड़ेगा तो क्या होगा, right? So
मैंने सूचर्स लेके जो ऑरेंज के जो होते हैं छिलके उसके ऊपर ना आई प्रैक्टिस, मैं कह अगर आ भी गए तो आपने, अब मुझे बचपन से थोड़ी बहुत आई न्यू बटन शटन लगा लेने अपने छोटा मोटा, मैं कह यार सूचर ही लगाने हैं, कौन सी साइंस है। आई रेड अबाउट देम, आई सिलेक्टेड देम, आई प्रैक्टिस देम, और वन डे रात को 10 बजे बच्चा आ गया, सर फटा हुआ है, सूचर लगाना है, आई एम द डॉक्टर, देयर इज अ नर्स, so I had just the coolness in my mind. I went, I saw, साफ सुफ करवा के सूचर वगैरह लगा के, I got a little bit help from the nurse, I managed the situation, right? बहुत ऐसे situations आएंगे जिसमें it's your first time, तो आपको बस ये conviction होनी चाहिए कि यार if a new situation comes you will handle it, you can get help, और वो पहले सोचने से ही आपकी skills develop होती हैं, इसको कहते हैं anticipation. So we are going to take one question from the participants now. Please, Abdullah please. Humayun, he is asking that can we volunteer for projects related to forensic psychiatry like Justice Project Pakistan as a final year student? Definitely. I think it could be a very good on the CV also. जैसे हम CV की बात कर रहे थे, they're all my friends. We work very closely, and a lot of lawyers. Very interesting bunch of There is a people. question from Abdullah Humayun that can we volunteer for projects related to forensic psychiatry like Justice Project Pakistan? बिल्कुल मेरा आंसर वही है कि they can definitely, I can get them in touch with the JPP team, and they can kind of spend some time, learn about them, and they can be fruitful, and they can furnish them a certificate. Why not? We can talk about it. Thank you, sir. Any more questions that we have to ask, and then we can wrap that up? Shaza? I think we have Okay, Salman Asfar. sir's time. Yes, sir. Please go ahead. अच्छा, सलमान असफर ने पूछा है कि क्या psychiatrists are more vulnerable to psychiatric illnesses. तो इसका जवाब मैं आपको ऐसे दे देता हूँ कि एक दफा ये हुआ कि there was this professor of gynecology, तो मैं नाम जाहिर बात नहीं लूंगा, very influential, तो हम कहीं पे मेडिकल एजुकेशन की कॉन्फ्रेंस पे जा रहे थे, तो मुझे उन्होंने कहा डॉक्टर उस्मान ऐसा होता है ना कि जो मेंटल जो साइकियाट्रिस्ट होते हैं, दे काइंड ऑफ वो खुद भी थोड़े से पागल हो जाते हैं मरीजों को देख देख के। तो मैंने कहा मैडम वो आई कैन आंसर यू इफ यू डोंट माइंड। कहते हैं हाँ बताएं। तो शी वाज अ गुड फ्रेंड आल्सो, थी बहुत सीनियर मेरे से। मैंने कहा मैडम आप गायनेकोलॉजिस्ट हैं, कभी ऐसा हुआ है कि आप डिलीवरियां कराते कराते खुद भी प्रेग्नेंट हो जाएं? तो मैंने कहा हो प्रेग्नेंट ठीक है, बट नॉट नेसेसरी फ्रॉम दैट प्रोसेस। तो एक जो स्विमर है वो उसको पता है कितने लोगों को बचा सकते हैं, कितनी स्विमिंग कर सकता है, ठीक है। हाँ जज्बाती होके हो सकता है वो खुद भी डूब जाए, वो 4 को बचा रहा है तो हो सकता है डूब जाए। एक जज्बाती साइकियाट्रिस्ट हो सकता है अपनी कैपेसिटी से ज्यादा बोझ ले। पाकिस्तान में 500 से कम साइकियाट्रिस्ट हैं, ओवरबर्डन है, 100 मरीज हैं, यू हैव नो चॉइस। हारून रशीद साहब, he died of heart attack, massive heart attack. He had no time to rest. He was sleeping 3 hours. ठीक है ना? So ये तो थे हारून रशीद साहब, द टॉप साइकियाट्रिस्ट। एक विला साइकियाट्रिस्ट होता है जैसे मैं हूँ आपके सामने, जो हर वक्त ही फारिग है, एनी स्टूडेंट कैन कम, एनी पेशेंट कैन कम। आई ऑलवेज टेल देम कि यार आई हैव लॉट ऑफ टाइम, इफ टाइम इज मनी आई एम द रिचेस्ट पर्सन। ठीक है, वैसे मेरे से पैसे ना मांगे, लेकिन अगर टाइम इज रियली मनी, जो हम कहते हैं बचपन से पढ़ रहे हैं, तो आई हैव लॉट ऑफ टाइम, आई कंसीडर माय सेल्फ अ रिच पर्सन। अभी मैं सुबह 4 घंटे साइकिल चला के आया हूँ, like I did like 60 kilometers. Sunday I had a wonderful evening. I went to Dr. Hashmi भी थे, बल्कि me, Dr. Hashmi, one radiologist from Shaukat Khanam, 2-3 और doctors. अब point ये है कि we know how to spend our time. ज़्यादा अगर आप लालची होते हो, काम में फंस जाते हो, तो any person will burn out. I hope Salman, your answer is there. Okay, so there is this question from Muneza Khalid. She's asking that you once mentioned in one of your talks that we are spiritual beings having a human experience,
and not human beings having a spiritual experience. So can you explain this in terms of how you view psychiatry as a field and how your approach is different towards it? अच्छा यार देखो आई एम इवॉल्विंग ऑल द टाइम. सो जब आप मेरा पहला लेक्चर सुनोगे ना, तो हो सकता है उस वक्त आई वाज इन अ डिफरेंट फेज. तो जब दूसरी दफा सुनोगे तो आई एम नॉट गोइंग टू डिफेंड दैट थिंग, आई एम गोइंग टू डिफेंड सम न्यू पॉइंट ऑफ व्यू. बिकॉज हो ये रहा है कि हम फ्लक्स में है ना. तो जब ये लेक्चर शुरू हुआ था 1 घंटा पहले, तब आई वाज अनदर पर्सन. अब 1 घंटे बाद इतनी इंटरेक्शन हुई है, नाउ आई एम अ न्यू पर्सन. 1 साल बाद टोटली यू आर न्यू पर्सन, यू मीट न्यू पीपल, यू इम्बाइब न्यू आइडियाज, यू मीट तो हर चीज फ्लक्स में है. हाँ, लेकिन जस्ट टू गिव यू पॉइंट ऑफ व्यू, ये सब बातों का खेल है. आप अपने आप को स्पिरिचुअल बीइंग कहना चाहते हो, स्पिरिचुअल बीइंग कह लो. आप रैशनल बीइंग कहना चाहते हो, रैशनल बीइंग कह लो. कहने से क्या हर्ज होता है? कहने से क्या फर्क पड़ता है? मेरे कहने से क्या फर्क पड़ेगा, राइट? अब पूरी फिलॉसफी हमें रैशनल समझती है, बट वी आर नॉट रैशनल. इट्स अ बिग लाई. हमने कभी कोई फैसला सोच समझ के नहीं किया, हम कर ही नहीं सकते. जो हमारा दिल है वो अंदर से गड़बड़ करके जिधर हमारा दिल जाना चाहता है वो उधर तार मिला देता है कि यार यू वांट दिस. तो हम मशहूर है इस बात के लिए कि जो हम करना चाहते हैं उसकी रैशनलाइजेशन देंगे, नॉट द अदर वे. तो अगर आप कोई न्यूट्रल होना चाहते हो तो यू विल ब्रिंग बोथ द पॉइंट्स. आप अपना नुकसान भी बताओगे कि हाँ यार साइकियाट्री में ये भी नुकसान है या ये भी हो सकता है. अब डेफिनेटली तो हम किसी टाइम पे वी विल बी स्पिरिचुअल. जब हमें कोई स्पिरिचुअल भी ना, जिससे आपको कई दफा यू आर इन अ फेज, इन अ वे, द काइंड ऑफ पीपल यू विल मीट, योर लैंग्वेज विल टेक अप दोज वर्ड्स. तो आजकल ना पाकिस्तान में बहुत ज्यादा स्पिरिचुअलिज्म आया हुआ है somehow. लोग ना आई एम अ स्पिरिचुअलिस्ट, यू दैट काइंड ऑफ थिंग. तो इसकी तशरीह उन्हीं से पता चलेगी कि इसका क्या मतलब है. व्हाट डू यू मीन बाय स्पिरिचुअलिस्ट? व्हाट डू यू थिंक ह्यूमनिस्ट इज? तो ये सब थोड़ा सा बातों का चक्कर है. मतलब इसमें वी नीड अ लॉट ऑफ डिस्कशन कि हम क्या कहना चाह रहे हैं. तो वो जो लेक्चर की बात करें वो उस वक्त का लेक्चर था, उस वक्त के और पॉइंट ऑफ व्यूज थे. Every statement will support the point the speaker is trying to make. ठीक है ना? जी सर. तो अगर ज्यादा मुसलमान होंगे तो I would like to say spiritualism. Why not? थोड़ा सा जरा फ्लेवर आना होता है ना. तो basically we are kind of a show performers also. आप जब शो करते हो ना, आपने कवाली सुनी होगी, तो जैसा क्राउड होता है वैसी कवाली होती है. ठीक है ना? तो psychiatry is more like a showman. मेरे पास एथियस्ट आएगा तो आई विल हैव टू कनेक्ट विद द पर्सन. शराबी आएगा, आई विल हैव टू कनेक्ट विद दैट पर्सन. चरसी आएगा, आई विल हैव टू कनेक्ट विद दैट पर्सन. मौलवी साहब है, आई हैव टू कनेक्ट विद दैट पर्सन. अब इतने ज्यादा लोग तो नहीं ना मेरे अंदर, तो आई हैव टू कुछ चक्कर होने चाहिए ना मेरे. तो दिस इज व्हाट आई एम डूइंग. सही सर. Sir, thank you so much for joining us today. And I don't think this time was enough to encompass everything. I'm always But- remember always here. जब आपका दिल करे, you can connect and we can have a session. Sir, thank you very much. Thank you to all the participants, and we are very grateful that you joined. Thank you, sir, Okay. for joining अच्छा, in. I'll leave my number over here. So if somebody wants to kind of connect in some way, so they can have a direct access me. So I'm sure you'll have some more questions. कोई ऐसा burning question हुआ तो you can always connect. You're all welcome. बहुत शुक्रिया आप सबका. Special thanks to the moderator and Dr. Yushe and all the past students. Khudafis. Thank you, sir. Thank you, sir. Allah Allah Hafiz. Hafiz.